Hello everyone. Today in this video, I am going to teach you the conditional statements in Python programming. This is in chapter 6 of your computer science and IP also. So this video will be for both students, those who are in IP or in computer science. So what is conditional statement or conditional constructs in Python programming? We will see in this video and we will understand how to do the programming of logical problems, how the logical problems are processed in CPU. So let us begin. What is logical operations in CPU? When you give some input, okay, when you give some input in the computer, so whether it is some logical statement like if one person is above 18 years old or 18 years, then only he can cast a vote. Okay, if your balance of account is greater than the withdrawal amount, then only we can process for your transaction. So this is logical statement, means your processing is dependent on certain condition, certain logic. If this logic satisfy, if this logic or conditions fulfill, then only your processing will be done by the arithmetic and logic unit of CPU, and then output will be given by your CPU. So you know, in CPU there are three parts: control unit, arithmetic and logic unit, and then memory unit. So first of all, to perform any types of task in any software, you need to give first input. When you give the input, if this data is need to be processed logically, means if there is a condition or situation where logical decision needs to be taken based on certain condition, then this CPU will process like arithmetic and logic operation, means compare the value with the certain condition. If this condition meets, then only your output will be given. ओके, सो यहाँ पे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट के ज़्यादा फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लॉजिक्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है समझने का, वो क्या है? फ्लो चार्ट है. हाउ डज योर प्रोग्राम्स प्रोसेस योर डेटा स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो you will see these all the process in flow chart. Okay, so how the ALU performs the problems of arithmetic and logical units. Okay, you will see all these things in flow chart. So what is flow chart? Flow chart is graphical representation of method to solve a problem step by step. Means आप कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हो, तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने का कोई स्टेप बाय स्टेप एक मेथड है, प्रॉपर मेथड है. फर्स्ट स्टेप में क्या करना, फिर सेकेंड स्टेप फिर क्या करना, उसके बाद क्या करना. सो इसी को हम लोग ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने को क्या यूज करते हैं? फ्लो चार्ट. इसमें कुछ ग्राफिकल सिंबल्स हैं जिसको यूज करके हम लोग इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, लॉजिकल डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप एंड डिसीजन नीडेड टू बी परफॉर्म ऑफ टास्क. मतलब ये विजुअल मीन्स आप देख सकते हो ग्राफ में कि कैसे कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में. ठीक है, चलिए देखते हैं. जो फ्लो चार्ट में आपके ये ग्राफिक्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं. पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बिगिन होगा, उसको ओवल से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टार्ट और एंड दोनों ही ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एरो. एरो इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स. एक टास्क अगर बिगिन हुआ प्रोग्राम, तो इसके बाद हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है. ठीक है, next input and output both will be represented by this parallelogram. Okay, if you are giving any input, so that input will be shown in this parallelogram. And next one is after giving the input you need to process that data, so processing will be represented by this rectangle. Okay, next, if after processing you need to take the decision whether it is to be processed further or not, whether it should be given as an output or not. Means certain, if you have given input as a username and password, okay, so that username and password will be matched somewhere, and after matching that username and password, whether it is allowed to log in the user or not, so what that decision will be taken in this rhombus. Okay, now next one. So we will see one example how to process any logical operations in CPU. First of all, suppose one person input his age
and it will show that you are eligible to vote or not. Okay, so first of all what you have to do, you have to start the program. So start means oval. After starting you have to enter the age. Here you will enter your age. आपने जो एज इंटर कर दिया उसको पहले यहाँ लॉजिकली कंपेयर किया जाएगा, तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। सपोज आप यहाँ पे एटीएम मशीन में गए, स्टार्ट हुआ, एटीएम मशीन स्टार्ट है, यहाँ जाकर के आपने अपना है ना पिन डाला, अमाउंट डाला, तो आप ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये जरूरी तो नहीं, आपने अमाउंट डाला, पिन डाला, तो यहाँ जाकर के चेक होगा लॉजिकली, वो डिसीजन पहले चेक होगा। इफ योर अमाउंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन योर बैलेंस, आपने जो 5,000 निकालने के लिए डाला, क्या उससे ज्यादा या उतना पैसा आपके बैलेंस में है तो फिर प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा ट्रांजेक्शन। फिर चेक हो सकता है कि 2-3 कंडीशन चेक करना हो, क्या आपने जो पिन डाला है एटीएम पिन वो मैच करता है, हाँ दोनों मैच है तो फिर यस योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल और आपको विड्रॉवल मनी मिल जाता है। इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स तो नीचे आएगा नो सॉरी योर बैलेंस इज है ना लेस देन योर विड्रॉवल अमाउंट। और ये भी हो सकता है योर सॉरी योर एटीएम पिन इज इनवैलिड, ये बोलेंगे। जैसे ही आपका कुछ आउटपुट आ गया स्क्रीन पे, फिर आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा और ये एंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर आपका एज 20 ईयर्स से ग्रेटर है यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर ये फॉल्स है 20 साल से बड़ा नहीं है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आता है योर एज इज, फिर आप यहाँ पे आप ये नॉट एलिजिबल टू वोट तो आपने दे दिया, फिर रीजन आप एक और कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी करा दो। फिर यहाँ लिख दिया योर एज इज दिस एज ओल्ड, तो आप सिर्फ इतने ईयर के हो ये भी बता देना चाहते हो एक रीजन, तो दो आउटपुट दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देंगे। यहाँ ट्रू था तो यू आर एलिजिबल टू वोट, फिर वो भी यहीं पे आएगा और आप कितने साल ओल्डर हैं वो भी यहाँ पे दिखा दिया और उसके बाद एंड हो गया। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी एंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप वो मैसेज नहीं देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में यू आर दिस मच ईयर ओल्ड, तो आप डायरेक्टली यहाँ एंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, और बेसिकली ये समझ लेते हैं पाइथन में कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो x इज इक्वल टू 10 है ना, उसके बाद y इज इक्वल टू 20, इस तरीके से आप कुछ भी लिखते हो फिर लिख देते हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये सब सिंपल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यानी एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये तो पहले सॉरी ये एम्प्टी स्टेटमेंट में बता रहा था, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ भी आपको मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मतलब उस लाइन को सीधा पास कर जाना है बिना कोई प्रोसेसिंग किए हुए, तो वो एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाता है। सिंपल स्टेटमेंट ये कहलाता है जो मैंने अभी बताया, x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20 एंड देन z इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z इस तरीके का लिखे, या फिर इंटर योर नेम आपने एक नेम इंटर किया, फिर इंटर योर रोल नंबर आपने ये सिंपल स्टेटमेंट हुआ जिसका एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो आपका यहाँ लॉजिकल स्टेटमेंट होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता हो, है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, मान लीजिए एटीएम से, तो पहला स्टेटमेंट तो ये कि जो आपने पिन डाला वो मैच किया हो, एक कंडीशन तो ट्रू हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए कि अगर आपने जो अमाउंट डाला है वो आपका बैलेंस से है ना छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। बैलेंस से ज्यादा आपने डाल दिया तो भी तो नहीं होगा विड्रॉ, है ना। तो ये 2-3 चीजें। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने जितना अमाउंट डाला उतना अमाउंट का डिनोमिनेशन यानी नोट उस तरह के होने, तो ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3-4 स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा। वो सारे स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपका एक टास्क परफॉर्म होगा। ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट यूजुअली एग्जीक्यूट व्हेन अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ए कोड ब्लॉक इज कॉल्ड। एक कोड ब्लॉक मतलब हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में दे दिया इफ योर बैलेंस इज ओके ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू योर विड्रॉवल अमाउंट। ओके, उसके बाद फिर दूसरा इफ योर एटीएम पिन इज इक्वल टू द पिन स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑफ बैंक। उसके बाद फिर से एक हो जाएगा इफ योर अमाउंट मैच विद द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट अवेलेबल इन द एटीएम, देन ओनली योर विड्रॉवल वन जो ट्रांजेक्शन है विड्रॉवल ट्रांजेक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा, एक कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले द प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। सो अगर आपको कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम को फ्लो ऑफ कंट्रोल को है ना एग्जीक्यूट कराना हो अपने हिसाब से, तो आप क्या करोगे, यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं। उसमें
तीन तरह के स्टेटमेंट्स हैं। एक तो है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, जैसा अभी हमने कहा था, इंटर योर नेम, इंटर योर रोल नंबर, इंटर योर मार्क्स ऑफ मैथ्स, हिंदी, संस्कृत सब इंटर कर दिए और फिर आपका एक रिजल्ट प्रिपेयर हो गया और परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल सभी प्रिंट हो गया। तो ये सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, वन बाय वन स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट हो गया सिलेक्शन स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कि आप सर्च कर रहे हो कोई वैल्यू लिस्ट में से, स्टूडेंट्स है बहुत सारे, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करना है जो फेल कर गए हो। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है ना उसमें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से उन्हीं को सेलेक्ट करना है जिनका मार्क्स 30% से लेस देन होगा, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। या सिर्फ मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर में से उनको प्रिंट करना है जो लार्जर नंबर हो या स्मॉलर नंबर हो, ठीक है। तो ये इस ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है थर्ड आइटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट। आइटरेशन मीन्स रिपीटेशन। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया और जितने भी आपको स्टूडेंट्स के नेम फाइंड कर रहे हैं डेटाबेस में जिनका फी डिफॉल्टर हो, तो उन सबको प्रिंट करें। तो मान लीजिए आपके पूरे डेटाबेस में 3000 स्टूडेंट है और उनमें से 200 लोगों का नाम प्रिंट हो रहा है, तो यानी प्रिंट कमांड जो है वो 200 बार कॉल हो रहा है, राइट। तो 200 बार प्रिंट नहीं लिख करके हम लोग उसको लूप में लिख देते हैं। प्रिंट को एक बार लूप में लिख दिए, वो 300 स्टेटमेंट को एक ही बार में प्रिंट कर देगा, आपको प्रिंट 300 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लूपिंग, इसी को बोलते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट। मीन्स एक बार आप उसको डाल दिए लूप में तो वो स्टेटमेंट अपने आप रिपीट होते रहता है, आपको 300 बार 200 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सो व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? इसी में से आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। वही कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, उसमें से बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द 3 नंबर। 3 नंबर इंटर किया यूजर ने, लेकिन उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो कैसे डिसीजन लेंगे, है ना, कौन लार्जेस्ट है, तो उसके लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे, मान लीजिए आपके पास 5000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ उस बच्चे का आपको नाम प्रिंट करना जो टॉपर हो मार्क्स का स्कोरर, राइट। तो उसमें से आपको लॉजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा और फिर उसी का नाम सिर्फ प्रिंट करना होगा। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। उसको चेक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपके पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एलिफ लैडर स्टेटमेंट है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे इफ होता, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखेंगे। इट इज सिंपली स्टेट दैट इफ ए कंडीशन इज ट्रू, एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पाइथन कहता है कि आपको नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल जो अभी एज वाले बात बता रहे थे, इफ योर एज इज, मान लीजिए एक्स आपका एज है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो इसी को बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने इफ लिख दिया, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 then you are eligible to vote, means if one condition is true then you are eligible to vote। एक ही कंडीशन चेक ही करना है और इसमें दूसरा स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो नहीं होगा, आपके पास प्रिंट ही नहीं होगा। लेकिन है ना, इफ कंडीशन इज ट्रू द इंटेंडेड स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड। इंटेंडेड का मतलब क्या, ये देखिए इफ स्टेटमेंट लिखा और आपने यहाँ कंडीशन लिखा। कंडीशन क्या कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन है हमारा। ये कंडीशन ट्रू हुआ और ये यहाँ पे देख रहे हैं कोलोन देना है, सो कोलोन इज रिक्वायर्ड, ये मस्ट है कोलोन देना। यही स्पेसिफाई करता है कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके नीचे जो इंडेंटेशन में ये जो स्टेटमेंट लिखा ये एग्जीक्यूट होना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। The intended statement is implies that execution is dependent on the header। header means ये जो header है आपका कोलोन वाला, इस पे डिपेंडेंट है, ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, वोट दे पाएगा कि नहीं, वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये एग्जांपल एज वाला, जस्ट पाइथन का डेमोन्स्ट्रेशन है। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, आपने एज ले लिया, इंट इनपुट इंटर योर एज। जैसे ही आपको कंप्यूटर ने पूछा इंटर योर एज, आपने डाला 20, ठीक है। जैसे आपने 20 डाला तो यहाँ पे पहले कंडीशन लग गया सेकंड स्टेटमेंट में, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो चेक कीजिए एज का वैल्यू कितना रहा है, अभी हमने डाला है 20, 20 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू है, यस ट्रू है। तो प्रिंट, तो इसके हेडर के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ही इज एलिजिबल टू वोट। तो क्या प्रिंट करेगा कंप्यूटर, ही इज एलिजिबल टू वोट।
अगर नीचे आपने लिख दिया इस इंडेंटेशन के बाहर लिख दिया ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, मान लीजिए आपने 15 डाल दिया एज, ठीक है, तो इस हेडर के नीचे ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, डायरेक्टली वो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो यहाँ आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लिखेगा ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट, बट यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप कंट्रोल फ्लो में स्पेसिफाई करते हैं कि इफ द कंडीशन इज ट्रू द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं था, आपने जो वैल्यू सप्लाई किया वो कंडीशन को मैच नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जो एल्स में लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रही बात? बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, a Python program that demonstrates the use of if-else statement. Write a Python program to check whether entered number is even or odd. जो आपने नंबर इंटर किया वो इवन है या ऑड, वो चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो एन इंट इनपुट प्लीज इंटर ए नंबर, तो जैसे एक नंबर इंटर करेगा उसको इंटीजर में बदला और एन में स्टोर कर दिया। मान लीजिए आपने 10 इंटर किया, ठीक है, तो एन में अभी कितना है 10 है, ठीक है, तो एन में 10 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ एन इज मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि मॉडुलस और ये सिंपल डिवीजन में क्या फर्क है कि अगर आपने 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 आपको क्वोशेंट देता है, 2 5 10, 5 टाइम्स गया वो। लेकिन अगर आप लिखते हैं 10 मॉडुलस ये 2, इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा वो बताता है, तो ये बताएगा 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो 10 मॉडुलस 2 मतलब इक्वल टू 0, क्या 10 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, राइट। तो इस हेडर के नीचे क्या लिखा है, प्रिंट नंबर इज इवन, तो ये प्रिंट होगा कि नंबर इवन है। अगर हम 9 यहाँ पे डाले होते हैं, 9 को 2 से डिवाइड किया होता है तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, क्योंकि 1 आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बताता है, ये जो मॉडुलस वो क्या बताता है, रिमाइंडर, आप जान गए। तो 1 आता तो क्या 1 0 के इक्वल है, तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होता, ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है, यानी प्रिंट द नंबर इज ऑड। गॉट इट? ऐसे प्रोग्राम होगा। अब इसके बाद है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ऐसा कंडीशन जहां पे आपको कम से कम 10 से 12 कंडीशन चेक करने हो और फिर आपको प्रिंट करना हो रिजल्ट, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ के बाद एक कंडीशन, क्या पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा कंडीशन वो ट्रू नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप ढेर सारा कंडीशन को चेक कर सकते हैं और उनमें से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद एंड हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ और दूसरे कंडीशन को चेक किए वो ट्रू हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम यही खत्म हो जाता। पर पहला भी सही नहीं हुआ, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा सही हो गया मान लो, तो थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और प्रोग्राम वहां रुक जाएंगे। अगर ये तीनों ही सही नहीं हुए तो लास्ट में एल्स में वो बाय डिफॉल्ट दिया रहता है कि अगर कोई सही नहीं हुआ तो आपको ये प्रिंट करना है। तो एल्स में वही लिखते हैं, जो कोई भी स्टेटमेंट अगर सही नहीं हुआ तो लास्ट स्टेटमेंट यही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, है ना, एग्जाम दिया और आपका कुछ परसेंटेज आया, तो पहले जानते थे 90 प्लस से ऊपर आता है उसको ए ग्रेड बोलते हैं, 80 प्लस से अब 90 तक आता है उसको ए, है ना। उसके बाद उसी तरीके से 70% प्लस आता है तो उसको बी प्लस, 60% प्लस आता है उसको बी बोलते हैं, इसी तरीके से। तो हो सकता है किसी पर्सन का 99 आएगा, तो 99 आएगा उसका ए ग्रेड प्रिंट करेगा यही प्रोग्राम, लेकिन जिसका 66% आएगा उसको यही प्रोग्राम बी प्रिंट करेगा, क्योंकि जिसका जैसा मार्क्स रहेगा वैसा आउटपुट ये देगा। इसमें सारे कंडीशन लिखे हुए हैं। मान लीजिए 66 आपने लिखा, तो क्या 66 90 से ग्रेटर है, नहीं है, तो आगे आएगा फिर चेक करेगा क्या 80 से ज़्यादा है, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फिर यहाँ आ जाएगा। क्या ये 70 से अबव है, नहीं, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा। क्या ये 60 से अबव है, तो यस ट्रू, तो ट्रू हो गया, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है बी ग्रेड वो प्रिंट होगा और फिर आपका यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसका कंडीशन फुलफिल हो गया। मान लीजिए सी तक इसका, मान लीजिए 35% था बच्चे का, ठीक है। तो पहले देखिए, मान लीजिए टोटल इसका 35% आया, चेक करें क्या 90 से है, नहीं, तो एलिफ में आइए क्या 80 से ज़्यादा है, नहीं, फिर एलिफ में आइए क्या 70 से ज़्यादा, नहीं, तो फिर आएंगे
क्या इसका 60% से ज़्यादा है तो नहीं, फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ आएगा क्या 50 से अबव है तो नहीं, नहीं है तो इसका मतलब वो बच्चा फेल है और या फिर पास है, ठीक है ना। अब मान लीजिए फेल करना ही नहीं है तो फिर पास हो गया, और नहीं तो यहाँ पे आप एक और स्टेटमेंट दे सकते थे 40% तक और उसके बाद ले देते फेल, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में यही है। इसका मैं थोड़ा सा आपको 2-3 प्रोग्राम अभी करके बता देता हूँ ताकि आपको जो भी आप सीखे यहाँ पे वो आप समझ जाए, है ना। तो 2 मिनट आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि जो कुछ भी आप यहाँ पे देखे हैं वो आप प्रैक्टिकली समझ लें और खुद से प्रैक्टिकल भी कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स का यूज आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो का मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहला है ना डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे हैज लिख देता हूँ कमेंट में ताकि इसको प्रोग्राम कुछ ना समझे। तो इफ स्टेटमेंट, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, ओके, इंटर योर एज, ठीक है। कहाँ, ओके। अब एज तो इंटर कर दिया यूजर ने, तो उसको पहले चेक करेंगे कंडीशन पे इफ, तो पहले क्या लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके। और यहाँ क्या देंगे, कोलोन, ये मस्ट है। देखिए कोलोन जैसे हमने दिया तो वो यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे नहीं आकर के वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या लिखेंगे, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, और अगर ये नहीं है तो इसके बाहर आप देखिए ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही इस इंडेंटेशन के अंदर ये जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ, क्या लिख देंगे, you are not eligible to vote, ओके। इतना ही है प्रोग्राम में, ये इफ स्टेटमेंट का यूज है। इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। एज नाम का पहले बना हुआ है तो एज 1 डॉट, है ना, ये सेव कर देता हूँ और इसको रन कराते हैं पाइथन मॉड्यूल में, ठीक है। तो रन हो गया, आपको पूछ रहा है इंटर योर एज, मैंने 20 ईयर्स इंटर किया, क्या प्रिंट कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यू आर एलिजिबल टू वोट, और नीचे वाला भी कर दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि वो उसको कंडीशंस के बाहर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, ओके, और सिर्फ सेव कर देते हैं और फिर से इसको रन करा लीजिए। तो इंटर योर एज बोल रहा है 15 ईयर्स, ये आया नहीं आउटपुट, एक सेकेंड, फिर से रन कराते हैं, क्या बोल रहा है, एज 20 ईयर्स डालते हैं तो यस यू आर एलिजिबल टू वोट आ रहा है, लेकिन जब हम 18 ईयर्स से कम डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में हमने ये लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो क्या करना है, वो तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो यहीं पे इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर
नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसको कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं और रन करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में देखिए इफ और एल्स का फिर क्या यूज हो गया। अब 45 ईयर्स हमने डाला तो क्या कर रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर आप दोबारा इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, कहाँ गया, ओके, तो आपका प्रोग्राम को मान लीजिए 14 ईयर्स आपने डाला तो क्या लिख रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब जब से फर्स्ट टाइम में कंडीशन मैच किया तो यहाँ पे प्रिंट जो लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड में अगर ये कंडीशन नहीं मैच किया तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा था वो मैच किया। ठीक है ना, ये समझ गए बात को। एक मैं स्टेटमेंट आपको इफ एलिफ स्टेटमेंट को यूज करके मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं एक स्टूडेंट का, ठीक है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स एंट्री करूंगा और फिर उसके बाद जो परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो या फिर डे मैं नंबर ऑफ डे इंटर करूंगा और डे प्रिंट होगा, यही कर देता हूँ। तो डे नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, डे इक्वल टू इंट इनपुट, ओके, और फिर यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ डे, ओके, और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि इफ डे इक्वल टू 1, अगर डे नंबर जो आपने डाला है अगर वो 1 है तो फर्स्ट डे क्या होता है, ये प्रिंट में लिखेंगे सन मंडे, ओके, मंडे, राइट, ये होगा। पर अगर आपका ये सही नहीं है तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, एलिफ। ठीक है, एलिफ में लिखेंगे, हाँ, एलिफ में कंडीशन क्या होगा, डे इक्वल टू 2। अगर 1 नहीं है तो शायद आपने 2 इंटर किया होगा, तो प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे, ओके, ये। और इस तरीके से आपको कितने स्टेटमेंट लिखने हैं, ये 6 स्टेटमेंट लिखने हैं, तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ डे और, है ना, ये बदलता जाएगा। ओके ओके, तो नंबर ऑफ डे 3 जब होगा तो क्या प्रिंट करेगा, तो वेडनेसडे प्रिंट करेगा। ओके, वेडनेसडे। और जब नंबर डे 4 होगा तो ये आपको थर्सडे प्रिंट करेंगे। ओके, थर्सडे। और नंबर ऑफ डेज अगर आपके पास 5 है तो फ्राइडे। सिमिलरली टोटल 6 कंडीशन चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग डेज प्रिंट हो सकता है। आप जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट मिलेगा। एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, एलिफ और डे इक्वल टू 7। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट, ओके, ये हो जाएगा संडे, एंड देन एल्स स्टेटमेंट अगर इन सब में से कोई भी इनपुट यूजर ने नहीं दिया होगा, कुछ और भी एंट्री कर दिए होंगे, कुछ भी एंट्री कर दिया होगा अपने मर्जी से नंबर, तो उसके लिए एक ही दे देंगे, इनवैलिड। यहाँ पे लिख देंगे सॉरी, इनवैलिड डेज, इनवैलिड नंबर बोल देते हैं, प्लीज इंटर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन 1 to 7। ओके, ये प्रिंट कर देंगे, हो गया। और ये प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, राइट। अब ये डेज करके सेव कर देते हैं इसको, फिर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। सॉरी, मॉड्यूल के लिए कोई और केस हो गया है। इसको जैसे ही मॉड्यूल पे रन कराएंगे आपको यूजर इनपुट पूछेगा, इंटर द नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज जैसे ही आप यहाँ ट्रू प्रेस करते हैं, ट्रू में क्या दिखा रहा है, अगेन आप दूसरा कोई इनपुट डाल करके देखना चाहते हो, हर कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए आपका प्रोग्राम। 4 जैसे इंटर करके एग्जीक्यूट करा रहे हैं, थर्सडे प्रिंट कर रहा है। मान लीजिए आप बाई मिस्टेकली कोई दूसरा नंबर आपने प्रिंट कर डाल दिया है, नंबर सपोज 12 हमने इंटर कर दिया, क्या प्रिंट कर रहा है, सॉरी, इनवैलिड नंबर, प्लीज इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। तो आप जितने कंडीशंस आपने यहाँ पे दिए हुए हैं उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग
स्टेटमेंट सेलेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपके पास 50 स्टेटमेंट है, 50 अलग अलग कंडीशन है, लेकिन कोई एक ही कंडीशन एक टाइम में सेटिस्फाई होगा और उसका एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एक टाइम में। तो तीनों ही इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एलिफ लैडर स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन में देख चुके हैं। आई होप कि आप खुद से भी ऐसा प्रोग्राम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको अब हम लोग पढ़ाएंगे लूपिंग या आइटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, उगल बाबा पढ़ा लीजिए। कहाँ गया इसका?